جو یہ چھوٹا سا پروگرام رکھا اور یہاں تک پہنچایا، اور آپ لوگوں کا سب سے بڑا شکر گزار ہوں میں کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ دے رہے ہیں۔ یہ راتوں کا جگنا، نیند کو قربان کرنا، یہ بہت بڑی چیز ہے کہ اللہ کی تلاوت کو سنی جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سنی جائے اور اس پر عمل کیا جائے۔ یہ ہر انسان کو توفیق نہیں ملتا۔ بہت سارے لوگ اس گاؤں میں ہیں، بہت سارے مرد حضرات ہیں، بہت سارے نوجوان ہیں، بہت سارے بچے ہیں۔ اگر اللہ رب العالمین چاہتا تو سارے لوگوں کو توفیق دیتا کہ اس مسجد میں بیٹھیں، یہاں جو خطابت ہو رہی ہے 10 منٹ 5 منٹ 15 منٹ وہ سنتے غور کرتے، لیکن اللہ رب العالمین نے ہر کسی کو توفیق نہیں دیا۔ وہ گنے چنے ہیں ہم، وہ بہت بڑے خوش نصیب ہیں جسے اللہ رب العالمین نے ہم تمام لوگوں کو چنا۔ میرے پیارے بھائی اور دوستو، اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اگر وہ چاہتا تو اقیموا الصلاۃ کہہ دیتا یا وآتوا الزکاۃ کہہ دیتا، کوئی بھی عبادت ابھی خاص کر دیتا کہ یہی عبادت خاص ہے تمہارے لیے، یہی عبادت خاص ہے، نماز پڑھو۔ جسے میرے شیخ نے اس سے پہلے بتایا، بہت ہی جامع خطابت کی انہوں نے نماز کے بارے میں ایک مثال دوں میرے پیارے بھائی کو کہ ایک انسان ایک کتا پالتا ہے، وہ جب آتا ہے کہیں سے بھی وہ بولتا ہے بیٹا ٹامی ادھر آ، وہ کتا فوراً دوڑ کے اس کے پاس آتا ہے۔ جب پھر اپنے مجلس میں جاتا ہے، اپنے بھائیوں کے پاس جاتا ہے، وہ کتا کو پوچھتے ہیں تو نے مجھ سے اجازت نہیں لیا، وہ بلایا تیرے کو، کبھی 2 روٹی دے دیتا، کبھی کھانا دے دیتا، کبھی روٹی دے دیتا، کبھی مارتا، تو 2 گھوڑ کے پاس چلا گیا، 2 گھوڑ والے کے پاس، ہم تیرے مہمان ہیں، ہم تیرے بھائی ہیں، ہم تیرے گھر والے ہیں، تو نے ہم سے اجازت نہیں لی۔ تو اسے رب کا حکم ہے، جب اللہ رب العالمین نے کہہ دیا کہ ہم عبادت کے لیے ہی پیدا کیا لوگوں کو، تو پھر گھر والوں سے مشورہ نہیں لینا، بیوی بچوں سے مشورہ نہیں لینا۔ جب حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدائیں ہماری کان میں پڑے تو مسجد میں آنا ہے ہر حال میں۔ میں ایک بات اور بتلا دینا چاہتا ہوں نماز کے بارے میں، نماز تو کسی حال میں معاف ہی نہیں ہے، کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے۔ انسان صرف 2 ہی حال میں معاف کر سکتا ہے کہیں پر، یا تو خود کو پاگل سمجھ لے یا تو خود کو حائضہ عورتوں میں سے شمار کر لے، 2 ہی صورت میں۔ لیکن میرا موضوع جو ہے وہ ہے حقوق العباد۔ میرے پیارے بھائی اور دوستو، عبادت کی تمام انواع میں سے یہ بھی ایک عبادت ہے حقوق العباد، کہ ہم بندے کے ساتھ کس طریقے سے ویوہار کرتے ہیں، کس طریقے سے رہتے ہیں، میرا بھائی مجھ سے خوش ہے یا نہیں، میرا پڑوسی مجھ سے راضی ہے یا نہیں، میرا دوست مجھ سے خوش ہے یا نہیں۔ اس طریقے سے ہم اپنے اندر اپنے ضمیر سے پوچھیں، اپنے آپ میں جھانک کر دیکھیں۔ ہم نماز میں تو بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، زکوٰۃ تو دیتے ہیں، حج تو کرتے ہیں، عمرہ تو کرتے ہیں، لیکن سارے اعمال کو کرنے کے باوجود، اعمال اکٹھا کرنے کے باوجود، عبادت کرنے کے باوجود ہم حقوق العباد میں گر جاتے ہیں۔ کیوں گر جاتے ہیں میرے پیارے بھائی اور دوستو؟ اعمال کا ذخیرہ ہمارے پاس اکٹھا ہو، اعمال کا ذخیرہ ہمارے پاس اکٹھا ہو، ہم لے کر جائیں اللہ کے پاس، لیکن اگر ہمارا پڑوسی ہم سے راضی نہ ہو، ہمارا دوست ہم سے راضی نہ ہو، ہمارا رشتہ دار ہم سے راضی نہ ہو، ہمارے مہمان ہم سے راضی نہ ہو، ہمارے گاؤں محلے والے ہم سے راضی نہ ہو، تو قسم خدا کی سارے اعمال کو ہمارے چہرے پر مار دیا جائے گا اور یہی کہا جائے گا لے جاؤ، تمہارے اعمال کی ضرورت نہیں ہے ہمیں، یہی ہمیں بتایا جائے گا۔ میرے پیارے بھائی اور دوستو، آج بڑھ چڑھ کر عبادات میں حصہ تو لیتے ہیں، لیکن اپنے بھائی کا دل دکھا دیتے ہیں، اپنے بھائی کو گالی دیتے ہیں، اپنے بھائی سے دشمنی رکھتے ہیں اور اپنے بھائی کا مال کھا جاتے ہیں۔ کیا نہیں ہے؟ کھیت ہڑپ لیتے ہیں، پیسہ بیمانی کر لیتے ہیں، اگر وہ ہمیں معاف کرے گا تبھی تو معاف کر دیے جائیں گے۔ کیا ہمیں ڈر نہیں لگتا اللہ رب العالمین سے؟ کیا ہمیں خوف نہیں کھانا اللہ رب العالمین سے؟ اللہ رب العالمین تو کہتا ہے ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ،
वअज्रुन कबीर। क्या कहता है अल्लाह रब्बुल आलमीन? जो लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन को नहीं देखते हैं, फिर भी डरते हैं, फिर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान रखते हैं, उनके लिए अज्र है, उनके लिए बदला और सवाब है। लेकिन आज हमारा जमीर मच चुका है, हमारे सीने पत्थर के हो चुके हैं, तो हमारे दिल में कहां से एहसास होगा, कहां से एहसास पैदा होगा मेरे प्यारे भाई? क्या हम आज अपने पड़ोसी का माल खाए हैं तो कल क़यामत के दिन वो पड़ोसी हमसे सवाल नहीं करेगा। कल क़यामत के दिन जानते हो मेरे प्यारे भाइयों, एक इंसान को बुलाएगा अल्लाह रब्बुल आलमीन और उसे कहेगा, आज तू मुझे बतला, दुनिया की तमाम दौलतें, मालो दौलत अंबार तेरे हाथ में रख दिया जाए, तुझको दे दिया जाए, तेरे सामने रख दिया जाए, क्या तू किसी को दे सकता है अपने माल को? क्या तू दे सकता है किसी को अपने माल को? कहेगा ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन, एक लम्हे में कहेगा, ऐ अल्लाह मैं दे सकता हूं, इस माल को दे दे, बस जहन्नम से मुझे बचा। आज जिस माल की तलब के लिए जानते हो, जंगे उहुद में एक सहाबी है जो शहीद हो गए। लोगों ने कहा ये तो जन्नती है, शहीद हो गया, लेकिन अल्लाह के रसूल ने कहा नहीं, माले गनीमत में से इसने एक चादर चुराया है और इसकी रूह आसमान पर लटकी होगी। जन्नत में उस वक्त नहीं जाएगा जब तक कि इसके वर्षा उस चादर को आगे ना कर दे। आज हमारा हाल क्या है? बेईमानी तो कर लेते हैं, और एक हुकूकुल इबाद में से सबसे बड़ा मकाम जिसका है, मैं वक्त नहीं है लेकिन मुख्तसर बताऊंगा इंशाअल्लाह। हुकूकुल इबाद में से सबसे पहला जो मकाम है वो है हमारे वालिदैन के बारे में। मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों, अगर वालिदैन के बारे में मैं खिताबत करूं तो कसम खुदा की पूरी रात गुजर जाएगी, लेकिन खिताबत नहीं खत्म होगी। किसी ने कहा माँ से बढ़कर कोई नाम क्या होगा, माँ से बढ़कर कोई नाम क्या होगा, उस नाम का हमसे एहतराम क्या होगा, जिसके कदमों के नीचे जन्नत है उसका सर का मकाम क्या होगा। मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों, आज एक माँ हुकूकुल इबाद में से सबसे पहले मकाम जो है किसका है? माँ और बाप का। एक बाप अपने बेटे और अपने बीवी की खर्चात पूरी करने के लिए पूरा जिंदगी सर्फ कर देता है, पूरी जिंदगी खत्म कर देता है, ताकि हमारी बीवी हमसे राजी रहे, हमारा बच्चा सही तरबियत वाला बन जाए, हमारा बच्चा सही से रहे। लेकिन आज वही बेटे अपने बाप से ऊंची आवाज में बात करते हैं, अपनी माँ को गाली देते हैं। क्यों मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों? एक माँ 9 माह तक अपने बच्चे को पेट में रखती है, 2 साल तक दूध पिलाती है, उसके कर्ज को भूल जा रहे हैं, उसकी खिदमत को भूल जा रहे हैं। आज कहते हैं अब्बू तेरे को क्या मालूम जितना मुझे मालूम है। अरे पागलों, जब तुझे चलना नहीं आता था, जब तुझे बिस्तर पे सोना नहीं आता था, यही तेरे माँ बाप तेरी उंगलियां पकड़कर तुझे चलाते थे। आज तुम अपने माँ बाप को भूल चुके हो। क्या हमें और आपको नहीं मालूम है कि अबू हुरैरा क्या कह रहे हैं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अबू हुरैरा रावी है कि अल्लाह ताला की नाराजगी किसमें है? वालिदैन की नाराजगी। अगर हम वालिदैन को नाराज करते हैं तो अल्लाह ताला हमसे नाराज है, अगर वालिदैन हमसे राजी है तो अल्लाह ताला हमसे राजी है। मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों, वो माँ इतनी बड़ी हस्ती है, वो बाप इतना बड़ा हस्ती है, लेकिन आज हमने अपने माँ बाप की कदर और कीमत भूल चुके हैं। क्यों मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों? क्या हम मुसलमान नहीं हैं? क्या हम अल्लाह के बंदे नहीं हैं? क्या हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत नहीं है? अरे उन सहाबा कराम को देखिए मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों, जिन्हें खाने के लिए खाना नहीं है घर में, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है बदन पर, लेकिन हदीसों को सुनने के लिए, कुरान की तिलावत सुनने के लिए मीलों मीलों का सफर करते हैं, 3 महीने पत्ता खाकर जिंदगी गुजारते हैं, खुजूर खत्म हो जाती है, उनकी गुठलियां चूस कर जिंदगी गुजारते हैं। क्या हम मुसलमान नहीं है? क्या हमारा जमीन मर चुका है? क्या हमारे अंदर वो ईमान नहीं है? आज बताइए मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों, आज बताइए अपने रब को कौन सा चेहरा दिखाएंगे हम लोग? कौन सा चेहरा? एक मुसलमान भाई हमसे नाराज है, हमारे वालिदैन हमसे नाराज है, हमारे माँ बाप हमसे नाराज है, तो क्या हमारा बख्शिश हो सकता
नमाज पढ़े, लाख रोजा रखें, लाख इबादत करें, लेकिन अगर हमारा पड़ोसी हमसे खुश ना हो, हमारा भाई हमसे खुश ना हो, हमारे रिश्तेदार हमसे खुश ना हो, हमारे माँ बाप हमसे खुश ना हो, तो हमारे अमल को हमारे चेहरे पर मार दिया जाएगा। क्यों? बातों को सुनने के बावजूद, बात जब सुनते हैं, जब हदीस पढ़ी जाती है, जब कुरान की तिलावत की जाती है, तो हमें बहुत अच्छा लगता है, हमारे ईमान में ताजगी पैदा हो जाता है। लेकिन मस्जिद से निकलने के बाद यही मुसलमान जो आज इस मस्जिद में आए हैं, रात को जग रहे हैं, अपने नींद को कुर्बान कर रहे हैं, यही मुसलमान वहां जाने के बाद क्या हो जाता है मेरे प्यारे भाई? क्यों अपने दीन और धर्म को भूल जाते हैं? क्यों अल्लाह के फरमान और अल्लाह के रसूल के फरमान को भूल जाते हैं और उस पर नबी खींचते हैं? क्यों मेरे प्यारे भाई? एक माँ की कदरों की मत समझो मेरे प्यारे भाई और दोस्तों, एक पड़ोसी की कदरों की मत समझो। और माल वाली बात है, किसी का अगर हराम खाए हो, एक बारिश भी जमीन अगर किसी के हर पे हो, तो कसम खुदा की उसे वापस कर दो, उसे दे दो। वो हमारे लिए वबाल है, वो हमें जहन्नम में ले जाएगी, वो हमें जहन्नम से निजात नहीं पाएगी, वो हमारे लिए वो खतरनाक है और खसारा उठाने वालों में से होंगे उस दिन क़यामत के। जो माल कमाना है, जो खाना है, दुनिया में कमा लो, दुनिया में खा लो, कल क़यामत के दिन इंसान यही कहेगा, माँ अगना अन्नी मालिया हलाका अन्नी सुल्तानिया, मेरी माल दुनिया में तो लाखों करोड़ों की संपत्ति थी, मेरे पास तो बड़ा बड़ा कौम का सल्तनत था, मैं तो अमीर था फला गांव का, लेकिन कल क़यामत के दिन वो माल काम आएगा क्या? कब्र में माल लेकर जाएंगे? नहीं मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों, अरे कब्र में तो कोई कपड़ा अपने पैसे से नहीं, कोई नात बात लाकर कोई रिश्तेदार देता है, वो भी अपने पैसे से खरीदने की नसीब नहीं होती, तो कहां से बताइए। एक जरूरी बात यह है कि माल के बारे में हुकूकुल इबाद में ये भी आता है कि हम अपने बेटियों का हक खा लेते हैं। हालांकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, फमन रग़िब सुन्नती फलैसा मिन्नी, जिसने मेरे सुन्नत से एराज किया वो हमें से नहीं है। आज सोचो, निकाह मिन सुन्नती, निकाह तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। हर कोई मुसलमान शादी करता है, या मर्द हो या औरत, लेकिन किस टाइप का करता है, किस तरीके से करता है। भारी भरकम वाला शादी होता है, रस्म रिवाज वाला शादी होता है। आज हमारे माशरे में देखा जाए, आज हमारे समाज और सोसाइटी में देखा जाए, तो एक बेटी वाला कहता है जहेज दे दिया, बात खत्म, आप जहेज दो, आप अपनी बेटी का वरासत दो, आपसे वरासत मांगा जाएगा। आज जो अपने बेटियों का वरासत खा ले रहे हो और कहते हो हम अपने बेटियों से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं, मैं बेटी और बेटा में फर्क कुछ भी नहीं समझता। क्यों? क्योंकि 9 महीना माँ उसी को पेट में रखती है, 2 साल तक दूध पिलाती है, वही है। तो जब बेटा हिस्सा ले सकता है तो बेटी हिस्सा क्यों नहीं ले सकती है? बेटी को हम हिस्सा क्यों नहीं दे सकते हैं? क्यों मेरे प्यारे भाई और दोस्तों? क्यों? क्या कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन इसके बारे में सवाल नहीं करेगा? करेगा, और हमसे पूछेगा, एक एक चीज के बारे में पूछेगा। आज अपने बेटियों का जो माल खाए हो और जो लोग अपने बेटों को जहेज लेते हैं, वो सुन ले, तुम पर सादगी निकाह वाजिब है। भाई भरकम रकम लेना, 5 लाख 10 लाख का डिमांड करना बेटी वालों के सामने ये बिल्कुल हराम है। और तुम्हारे लिए जो लड़की वाला है वो कान खोल कर सुन ले, जो 25% 50% तुम्हारे बेटी के हक में आ रहा है, तुम अपने बेटियों को दो, अपने बेटियों का हक निभाओ। मेरे प्यारे भाई और दोस्तों, उनका माल मत खाओ। कल क़यामत के दिन वही बेटी कहेगी, सूरह मारिद उठाओ, जिस बेटी को आप समझते हो कि मेरी बेटी है, जिस बेटे को समझते हो आप कि मेरा बेटा है, सूरह मारिद उठाकर देखो, एक बेटा कहेगा जहन्नम से बचने के लिए, ऐ अल्लाह मेरे बाप को जहन्नम की आग में डाल दे, ऐ अल्लाह मेरी बीवी को जहन्नम की आग में डाल दे, ऐ अल्लाह पूरी दुनिया को, पूरे कायनात को जहन्नम की आग में डाल दे, बस मुझे बख्श दे, मुझे माफ कर दे। सोचो मेरे प्यारे भाई और दोस्तों, अगर आप एक खेत है आपके पास तो हिस्सा ईमानदारी से लगाइए, अपने बेटी को
को भी वरासत दीजिए मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों। कल भी इसके बारे में सवाल किया जाएगा आपसे, पूछेगा मालो दौलत की कदर और कीमत इस दुनिया के अंदर समझते हो आप, लेकिन कब्र में जाने के बाद कुछ नहीं है वो, आखिरत में जाने के बाद कुछ नहीं है वो। अल्लाह ताला कहता है अगर दुनिया मच्छर के पर भी बराबर मेरे नजर में होता तो मैं सोचता कि हाँ कुछ है दुनिया, कुछ नहीं है ये दुनिया, धोखे के सिवाय दुनिया कुछ भी नहीं है। ये दुनिया लहू नहीं है, खेल की दुनिया है। खेलो कूदो, अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करो। आज हदीसों को सुनते हैं लेकिन उस पर अमल नहीं करते हैं। लाख में चिल्ला चिल्ला कर कह दूं, लाख खतीबों को बुला लिया जाए इस मस्जिद में, पूरी रात खुतबा दिया जाए, लेकिन ये बड़ी बात नहीं है कि खुतबा सुने, पूरी रात जगे, अपने नींद को कुर्बान करें। नहीं मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों, ये कोई बात नहीं है कि पूरी रात खुतबा सुनते रहें और जगते रहें, चाय का चस्का लेते रहें, ये मजा नहीं है। आप इस मजालिस में आए हैं, इस मस्जिद में आए हैं, तो एक बात का ध्यान रखें कि खतीब ने कौन सा हदीस बताया है, खतीब ने कौन सी कुरानी आयत बताई है जिस पर मुझे अमल करना है। क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते हो आज जो सुन्नतों से इराज करते हैं, जो माल खाते हैं, हड़पते हैं, लूटते हैं, और आज मैंने जितनी भी बातें आप हजरात को बतलाई है, अगर इन तमाम बातों पर अमल ना करें तो मेरा कुछ नहीं होगा। कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों से यही पूछेगा, खज़नतुहा अलम यातिकुम नज़ीर, क्या तुम्हारे पास कोई डराने वाला नहीं आया था? क्या तुम्हें कोई बतलाने वाला नहीं आया था? क्या तुम्हें कोई समझाने वाला नहीं आया था? अरे खुशनसीब है इस मदरसे के बच्चे, मेरे प्यारे भाई और दोस्तों, मेरे जो दो तीन भाई हैं इस गांव के, इन्होंने बहुत अच्छा किया जो ये प्रोग्राम रखा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से मेरी दुआ है कि इन पर जहन्नम का आग हराम कर दे और जन्नत के लिए आसानी रास्ता बना दे। मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों, ये प्रोग्राम जो दीनी प्रोग्राम है, एक एक हदीस को सुनिए। अल्लाह ताला ने कहा जिस काम से मैंने रोक दिया उस काम से रुक जाओ, जिसका हुक्म दिया उसे बजा लाओ, उसे कर डालो। आज हम तमाम लोगों ने आप लोगों को वही बातें बतलाई हैं। कोई भी 5 मिनट हो, 10 मिनट हो, एक हदीस क्यों ना हो, लेकिन अगर उस पर अमल कर ले तो हमारी पूरी जिंदगी मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों समझ जाएगी। एक हदीस, एक कुरान की आयत गौर करके देखें। आज से पड़ोसी से झगड़ा नहीं करेंगे, आज से अपने रिश्तेदारों से अच्छा व्यवहार करेंगे, आज से अपने भाई से मिलजुल कर रहेंगे, आज से अपने बेटी का हक अदा करेंगे, अपने बेटी का माल नहीं खाएंगे, आज से हराम कमाई बैंड और हलाल कमाई चालू। आज से इस मस्जिद में अहद करें मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों, वरना कल क़यामत के दिन यही पूछेगा जहन्नम का दरोगा, खज़नतुहा अलम यातिकुम नज़ीर, क्या तुम्हारे पास कोई डराने वाला नहीं आया था? क्या तुम्हें कोई राह दिखाने वाला नहीं आया था? क्या तुम्हें कोई समझाने वाला नहीं आया था? यही कहोगे क़ालू बला क़द जाअना नज़ीर, मेरे पास आया था डराने वाला, फला रात को, फला बजे, फला टाइम उसने बताया था सारी हदीसें, लेकिन हमने झुठला दिया, हमने झुठला दिया उसे, उस पर अमल नहीं किया, या सुनने के बावजूद भी हम बहरे हैं या गूंगे हैं या पागल हैं जो हमने इन हदीसों पर इनकार किया, इन पुरानी आयत पर नकीर खींचा। मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों, लंबी बात हो गई, माजरत चाहता हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन से मेरी यही दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इन तमाम बातों पर हम तमाम लोगों को अमल करने की तौफीक आमीन और अपनी जिंदगी में एक नया आइडियल और नमूना बनने की तौफीक दे और तमाम इबादत को बचा लाने की तौफीक दे। आमीन।